मॉड्यूल 13 डे 4 फर्स्ट इम्प्रेशंस लेकर मैं हाजिर हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल रहती है। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, सो देर न करते स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में आपका है ओके, असेस your understanding on approaches to career development by violating some scenarios के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। एंड नेक्स्ट है राइट अ प्रोफेशनल कवर लेटर, लीव योर इम्प्रेशन। सो कवर लेटर के थ्रू आप कैसे इम्प्रेशन दोगे वो भी मॉड्यूल में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट बी में। सो पार्ट बी में आपका है एजुकेटर फीडबैक्स। ओके, सो 3 फीडबैक्स है, ये आपको रीड करना है। ओके, देन इसको समझना है। सो फर्स्ट मैं थर्ड आपको रीड करके बता देती हूँ। देखिए, थर्ड फीडबैक, आंसर 3 इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी जो 3 आंसर है आपका। ओके, विच द अदर 2 आंसर वुड बी वैलिड ऑप्शन, द लास्ट option is correct for Tanya. It is easy to switch careers when you tell people what you're looking for and the first that you want to change. When you start developing those relationships in the field you're looking to improve into, you begin to see which of your skill set is transferable and that could be of benefit to this new career you're trying to cultivate. Okay, in this scenario Tanya is using the network approach and the matrix approach. तो स्टूडेंट्स ये मैंने थर्ड वन आपको रीड करके बताया, आपको ये आपको खुद से रीड करने हैं। ओके, सो फीडबैक एजुकेटर के थ्रू ये कैसे दिया जाता है ये आपको फैसिलिटेटर अच्छे से गाइड करेंगे। मुझे तो सिंपल वे में आता है, देन आपको फैसिलिटेटर डिटेल में आपको बताएंगे। ओके, सो थर्ड वन इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 360W. Question 1 feedback. Answer 2 is the best option. This is because John knows what he wants to do, but he doesn't have a portfolio to demonstrate his talent for cinematography and what he's capable of doing. A portfolio is critical for the career he wants for himself, as it's a path where the only thing of value is what the person can create and produce. By working to create a portfolio whilst simultaneously doing an entry-level position, John is able to get the experience he needs, and the exposure to build relationships that will help him to start developing his dream career. In the scenario, John is using a combination of the ladder and portfolio approach for his career. Question 2 feedback. Answer 1 is the best option. This is because Monique knows she wants to be an entrepreneur and she has developed the skill set to do that. She is a lawyer, she has an MBA and she knows how to create a business. Whilst the other 2 answers are valid options for Monique, in this particular scenario she has an innovation that she wants to test out in the market. It makes most sense for her to pursue that, rather than investing time in someone else's innovation or trying to embed herself in a practice that she feels isn't being innovative enough. In the scenario, Monique is using a combination of the entrepreneurial and matrix approach for her career. She will also use the network approach in order to meet the right investors for her business plan. Question 3 feedback. Answer 3 is the best option. Whilst the other 2 answers would be valid options, the last option is correct for Tanya. It is easy to switch careers when you tell people what you are looking for and the fact that you want to change. When you start developing those relationships in the field you are looking to move into, you begin to see which of your skill set is transferable and that could be of benefit to this new career you are trying to cultivate.
In this scenario, Tanya is using the network approach and the matrix approach. 61. Part C. Article cover letter. How to write an effective cover letter, 331 words. Job applications are usually made through either a job portal or by emailing your application package to the HR manager. When you email your application, your cover letter is what you write in the body of your email and is your first chance to make a good impression on a recruiter or prospective employer. At the very minimum, you are being evaluated on your ability to market your skills and your writing abilities. They're also gauging the effort you have put in to prepare your application package, and a poorly written cover letter that is littered with typos or bad grammar indicates that you're not serious about the job. To write a good cover letter, you'll need to do a little research on each job you apply for and adapt your application package to match the requirements of the position you are applying for. What should your cover letter contain? Introduction. The first paragraph of a cover letter is the introduction and contains one or more of the following information. Fill circle the position that you are applying for. Fill circle the source from where you got to know about the position. Fill circle a claim to fit the requirement. Fill circle expression of interest. Accomplishments. The body of the cover letter provides information about your accomplishments and what makes you suitable to perform the job. This part of the cover letter is customized for the position you are applying for and the skills needed to be successful. Recruiters are likely to scan and look for keywords that suit their business needs. While writing the section, you may select relevant information from your resume, or you may briefly reference and elaborate on information you have provided in your resume. The ask. This is the last paragraph of your cover letter. Here you will ask to be called for an interview. Some sample wordings usually used while asking for an interview are, I would welcome a personal interview, or I look forward to the opportunity to discuss my qualifications further. Students and learners, आपका पार्ट सी में है आर्टिकल कवर लेटर. ओके, सो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव कवर लेटर. ओके, उसके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है आपको. ठीक है, क्या उसके पॉइंट्स हैं. जॉब एप्लीकेशन आर यूजली मेक थॉट either a job portal or by emailing your application package to the HR manager. When you email your application, your cover letter is what you write in the body of your email and is your first chance to make a good impression. Okay, on a सो इसमें बताया जा रहा है आपको फर्स्ट जो आपका कवर लेटर की बॉडी होती है ना, उसमें आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बिल्ड करना है वो चीज आपको इसमें बताई जा रही है. ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ऑलराइट. सो और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, सो फर्स्ट इंप्रेशन आपको अपना कवर बॉडी में कैसे बिल्ड करना है वो इसमें आपको सिखाया जाएगा. एट द एवरी मिनिमम यू आर बीइंग वैल्यूएट ऑन योर एबिलिटी टू मार्केट योर स्किल एंड योर राइटिंग एबिलिटीज. ओके, सो आपकी जो स्किल क्या है, राइटिंग स्किल्स क्या है, वो सब भी इसमें मेंशन करनी होगी आपको. दे आर ऑल्सो एंगेजिंग. ओके, द इफेक्ट यू हैव पुट प्रिपेयर एप्लीकेशन पैकेज कवर लेटर. ओके, सो जो भी आपका कवर लेटर है उसमें इन अ शॉर्ट वे में आपके क्या स्किल्स है, क्या आपके क्वालिफिकेशंस है. ओके, क्या आपका लैंग्वेज स्किल है, वो सिर्फ आप इसमें देखा जाएगा. तो प्लीज उसको अच्छे से समझ के आपका कवर लेटर आपको लिखना है. और कुछ डायग्राम भी यहाँ दिए गए हैं. देन पॉइंट इसमें दिए गए हैं. व्हाट शुड योर करियर लेटर कंटेन. ओके, सो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या देखना है. द फर्स्ट paragraph of a cover letter, introduction and contain
वन और मोर यू फॉलोइंग। देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट है द पोजीशन दैट you're अप्लाइंग फॉर, ये चीज का ध्यान रखना है। द रिसोर्स फ्रॉम where you got to know about the position, a claim to fit the requirement, and exploration to interest। ओके, ये चीज का आपका ध्यान रखना है। ओके सिचुएशन लेना, ये मैंने कुछ हिंट दिए, आप प्लीज खुद से अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देन यहाँ पे कवर लेटर दिए गए हैं। पार्ट डी में कवर लेटर है फॉर आर टीचर सैम्पल, उससे रिलेटेड है, इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा राइट डाउन है। सेकंड आपका है कवर लेटर है फॉर आर टीचर, पार्ट सेम एज अ एग्जाम्पल है टीचर के लिए, ये भी आपको रीड करना है। देन आपको चेकलिस्ट है, मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स आपको यहाँ पे चेकलिस्ट करने हैं, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंगली आप कीजिएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको देखिए आपका जो सेकंड हाईलाइट करेंगे इंटरेस्ट पे, मैं आपको कर देती हूँ, सेकंड आपका होगा इसमें। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो ये इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर, पार्ट एफ में आपका है एम्प्लॉयमेंट रूबी, ओके रिज्यूम। ओके, जो आपको इसके थ्रू आपको फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे। देन मैं कुछ हिंट दे देती हूँ। ओके, सो रूबी सिस्टम के थ्रू आपका जैसे कि हम रूबी, ये मेरे लिए थोड़ा नया है तो उसी के थ्रू आपको इसको करना है, ठीक है। रूबी सिस्टम के थ्रू जैसे हम प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस करके आए हैं, रिज्यूम भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया। देखिए आपका स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग क्या होगा, ठीक है। 4 to 5 पॉइंट है फर्स्ट में, ओके 2-3 पॉइंट सेकेंड में, देन इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। सेकेंड आपका लैंग्वेज एंड फ्रेजिंग, आपसे अगर रिज्यूम राइट डाउन करवाया जा रहा है तो आपके क्या क्या पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, क्या क्या आपकी स्किल आपने क्या क्या यूज करे गए रूबी सिस्टम के थ्रू आपको देखना है, ठीक है। देन कॉन्टेनेंट में आपको वो भी आपको देखना है यहाँ, ठीक है। देन ये चीज हो गया। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट रूबी सिस्टम कवर लेटर। कवर लेटर का है वही सेम एज स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग एंड लैंग्वेज एंड फ्रेजिंग एंड कंटेंट, आपका कंटेंट क्या है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे से राइट डाउन करते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, मैं मीडियम स्टूडेंट हूँ, मैं हमेशा मैं मीडियम ही रही हूँ। देन आपका क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप 4 to 5 पॉइंट लाते थे या 2-3 पॉइंट लाते थे, या इम्प्रूवमेंट स्किल हमेशा सीखे राइट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, सो आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। चलिए अब एक्टिविटी बुक देख लेते हैं। आपकी एक्टिविटी बुक में आपका फर्स्ट आपका जाता है व्हाट लिस्ट, ओके सो ये है। देन नेक्स्ट आपका है ओके पार्ट बी में आपका है, पार्ट बी में आपका मोक सिनेरियो, ओके व्हाट्स द बेस्ट पार्ट टू टेक। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो अभी हमने रीड भी किया था जॉन से रिलेटेड, ओके सो यहाँ फर्स्ट जॉन से रिलेटेड आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट आप मोक देखेंगे, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, ओके मेरा futurelearn.com का अकाउंट का जो पासवर्ड है मैं भूल गई हूँ, तो मैं उसमें साइन इन अभी नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको काफ़ी इसमें हेल्प कर देती, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। सो आप वीडियो के थ्रू देख लीजिएगा, केयरफुल होके वीडियो ऑडियो जो भी आपको सुनाई जाएगी, जो भी आपने उसमें स्किल सीखी होगी या जो भी राइट डाउन करके होगा, तो प्लीज़ उसको केयरफुल होके देखिएगा, देन उसको अप्लाई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स लर्नर, क्योंकि ये क्विज की तरह है, इसमें टिक मार्क का, ओके। एंड नेक्स्ट भी सेम एज वही है, ओके। एंड माय फेवरेट तानिया, ओके सो ये आपके टिक मार्क के हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे और क्या है। स्टूडेंट्स लर्नर,
पार्ट सी में आपका है राइट डाउन ना कवर लेटर। मैंने इसको इसलिए करा ताकि थोड़ा आपको सिर्फ समझाना ही है, समझाने के थ्रू है, ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो सके। ओके, सो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट लर्नर्स। सो पार्ट सी में आपका है राइट और करियर लेटर। आपको यहाँ राइट डाउन करना है, जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, सो अपना बेस्ट दीजिएगा। ऑलराइट, देन पार्ट डी में आपका आ जाता है क्विज ऑन प्रोपोजिशन। ओके, 1 to 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप इसमें से भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगी होगी तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज्यादा कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो जानी चाहिए। ओके, सो अगर कुछ लगता है आपको इसमें भी मेरे से मिस्टेक्स हुई तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अपने आप को आपके जैसे ही इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मुझे सीखना पड़ता है। ओके, अपना सो आई होप आप समझ गए होंगे। मिस्टेक्स सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करिए अगर आपको वो नॉलेज है तो। ठीक है, सो आई होप आप समझ जाएंगे, तो मुझे मैसेज करते रहिए कीजिए कि मुझे अच्छा लगता है। अच्छे प्यारे और इम्प्रूवमेंट के लिए भी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।